ایک کشتی والے کو ایک بزرگ اللہ والے نے کی عجیبو غریب وصیت اپنی وفات سے پہلے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا گویا بنے گا اللہ کا ولی۔ اس ناچنے والے نے ایسی کون سی نیکی کی کہ ولی وقت بن گیا؟ یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک بار کی بات ہے، دریائے نیل پر کشتی چلانے والے ایک آدمی نے اس عجیب و غریب قصے کو سناتے ہوئے کہا کہ میں مصر کے دریائے نیل میں کشتی چلاتا اور اسی طرح میری گزر ہوتی۔ غفلت کا شکار تھا، دنیا کی فکر تھی، دین کی فکر نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب مہربان ہو جاتا ہے تو ہمارے درمیان کسی نیک بندے کو بھیجتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں دریائے نیل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا رہتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں کشتی چلا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف آ رہا تھا کہ وہاں میں نے ایک بہت ہی خوبصورت چاند سا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت ہستی کسی بزرگ کی تھی۔ روشن چہرے والے بزرگ کو دیکھ کر میرے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ اللہ والوں کی یہی انوکھی بات ہے کہ ان کو دیکھ کر دل میں ڈر آتا ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے سلام کیا۔ میں نے فوراً سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ عز و جل کے لیے مجھے دریا کے مغربی کنارے کی طرف لے جاؤ۔ میرا کام تو یہی تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ میری کشتی میں سوار ہو گئے۔ میں انہیں لے کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف پہنچا۔ میں ان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بزرگ نے صوفیوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ ان کی ہاتھوں میں ایک پیالہ اور ایک لاٹھی تھی، باقی کوئی بھی سفر کا سامان نہیں تھا۔ کشتی چلتی جا رہی تھی۔ میں ویسے تو کسی کی جانب نہیں دیکھتا، لیکن ان کی جانب بار بار میری نگاہ اٹھ رہی تھی۔ ایک تو اتنا حسین چہرہ، اس پر اتنی ہیبت کہ میں ان کو دیکھ کر فوراً نظر جھکا لیتا، اور وہ مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کیے جا رہے تھے، جبکہ قرآن پاک ان کے پاس نہیں تھا، تو اس کا مطلب تھا وہ حافظ بھی تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کی حلیے کو دیکھ کر میں یقین کر چکا تھا۔ ان کی خوبصورت آواز کو سنتا ہوا میں سفر کر رہا تھا۔ اب ہم دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ جب وہ کشتی سے نکلنے لگے تو وہ پھر سے میری جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کہیے، میں آپ کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ فرمانے لگے، میں ایک امانت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ ارشاد فرمایا، کل جب جوہر کا وقت ہو تو تم مجھے اس درخت کے پاس مردہ پاؤ گے جو سامنے ہے۔ عنقریب تم اس بات کو بھول جاؤ گے، لیکن جب بھی تمہیں یاد آئے میرے پاس آ کر مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا جو میرے سر کے پاس موجود ہوگا۔ پھر نماز جنازہ پڑھا کر مجھے اسی درخت کے پاس دفنا دینا۔ میرا یہ لباس، پیالہ اور لاٹھی اپنے پاس بطور امانت رکھنا۔ ایک شخص تمہارے پاس آ کر تم سے یہ چیزیں مانگے گا، انہیں اس کے حوالے کر دینا، اور یاد رکھنا اس کے لباس، اس کے حلیے کو دیکھ کر اسے حقیر نہ سمجھنا۔ وہ ملاح کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ بزرگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ان کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ یہ کیسی عجیب و غریب وصیت کی ہے، مانا کہ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے اپنی وفات سے پہلے، لیکن یہ وصیت کی ان کا سامان کسی ایسے شخص کو دینا جس کا حلیہ بگڑا ہوا ہوگا، اور مجھے اس کو دیکھ کر کچھ بھی نہیں سوچنا ہے، لیکن ان کی بات پر مجھے عمل تو کرنا ہی تھا۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا جس کا ان بزرگ نے ذکر کیا تھا، پر انہی کے ارشاد کے مطابق جب جوہر کا وقت آیا تو میں اس بات کو بھول گیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی وفات کے بعد مجھے انہیں غسل دینا ہے۔ اب میں ان کے پاس رنجیدہ کھڑا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر انہی کے پاس رکھے ہوئے ایک نئے اور اجلے سے کفن پر گئی۔ سبحان اللہ! میں کفن کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا تھا کہ اس میں سے مجھے مسک کی خوشبو آئی۔ میں نے انہیں
गुस्ल देकर वो कफन पहनाया। जब मैं गुस्ल देकर फारिग हुआ तो मैंने क्या देखा कि मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था, किसी को ये भी नहीं कहा था कि यहाँ पर किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ानी है। मैंने तो यही सोचा था कि मुझे इनकी अकेले नमाज जनाजा पढ़नी है, पर जैसे ही मैंने उनको कफन दफन किया तो काफी तादाद में लोग वहां आ पहुंचे, जिनमें से किसी एक को भी मैं नहीं जानता था। वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा, हम यहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए हैं, हुक्म इलाही के सबब। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो खुद हैरत जदा था, लेकिन हम सब ने उनकी नमाज जनाजा अदा की और उन्हें उसी दरख्त के पास दफन कर दिया जैसा कि उन्होंने मुझे हिदायत की थी। उसके बाद वो तमाम लोग चले गए, जिस सिमत से आए थे वहीं चले गए। उसके बाद अब मैं मामूल के मुताबिक अपने काम पर लग गया और दरियाए नील के मशरिकी किनारे की तरफ वापस आ गया और रात को सो गया। जब सुबह हुई, एक नौजवान मेरे पास आया। हुलिये से वो बहुत अजीबो गरीब लग रहा था। मैंने उसके चेहरे को देखा, गौर से उसके सरापे को देखा तो वो गाने बजाने वालों से ताल्लुक रखता था और उनकी खिदमत करता था। उसने बहुत ही बारीक लिबास पहन रखा था और बुजुर्ग की नसीहत के मुताबिक वो सच में ऐसा था कि उसको देखकर मैं उसे हिकारत से ही ये कहता कि तू यहाँ से चला जा, तू तो हराम काम करता है, हरामकारी करता है, यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे नसीहत की थी और सख्ती से ताकीद की थी कि उसके हुलिये, उसके लिबास को देखकर कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं, तो मैं खामोशी से उसे देखता रहा। और सबसे ज्यादा हैरान कुन बात ये थी कि मर्द होकर उसने दोनों हथेलियों पर मेहंदी लगाई हुई थी और मौसीकी की आला उसके बगल में मौजूद था। उसने मुझे सलाम किया। मैंने फिर हैरत से उसके सलाम का जवाब दिया। उसने कहा, ए मल्लाह, ए कश्ती चलाने वाले, तुम फला बिन फला हो? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास जो अमानत है वो मेरे हवाले कर दो। मैंने कहा, तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, इस बारे में मत पूछो, लेकिन मैंने इसरार किया कि तुम्हें इस बारे में बताना पड़ेगा। आखिर तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास उन्हीं बुजुर्ग की अमानत है? नौजवान ने कहा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता कि पिछली रात मैं अपने फला ताजिर की शादी में मौजूद था, जहां हम सारी रात नाचते गाते रहे, क्योंकि यही मेरा धंधा है और यही मेरा पेशा है। यहाँ तक कि अजाने फज्र हो गई और अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले उसके जिक्र में मशगूल हो गए, पर मैं इस जिक्र से गाफिल रहा। मैं आराम करने के लिए सोया तो एक शख्स ने आकर मुझे जगाया और कहा, अल्लाह अज़्वजल ने अपने फला वली की रूह कब्ज फरमा ली है और उसकी जगह पर तुम्हें मुकर्रर फरमा दिया है। तुम फला बिन फला कश्ती बान के पास जाओ, क्योंकि उस मरहूम वलीउल्लाह ने उसके पास तुम्हारे लिए वह अमानत रखवाई है। लाओ भाई, अब वो अमानत मुझे दे दो। वो कश्ती वाला कहने लगा, जाहिर सी बात है, ये बात सिर्फ मुझे मालूम थी और मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था। एक तो मोहलत नहीं मिली थी और फिर मुझे बताने का हुक्म भी नहीं था। अब दूसरी बात ये थी कि या तो मुझे मालूम थी ये बात या उसे, यानी वो सच कह रहा था। मैंने वो चीजें उस नौजवान के हवाले की तो उसने उसी वक्त अपने बारीक कपड़े उतार कर मेरी कश्ती में फेंक दिया और मुझसे कहा, ये कपड़ा जिस पर चाहो सदका कर देना। फिर उसने मुझसे बुजुर्ग का दिया हुआ प्याला और लाठी ली, उनका मोटा सुफियाना लिबास पहना और मुझे उस हाल में छोड़कर चला गया कि मैं उस सादत से महरूमी पर रो रहा था कि वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। और आखिर एक गवैये को अल्लाह ताला ने वली वक्त क्यों बनाया? मैं जानना चाहता था ऐसा कौन सा अमल था, जबकि रात भर वो नाचता रहा, गाता रहा और अल्लाह ताला ने सुबह उसे फज्र की अजान के बाद वली वक्त बना दिया। एक वली की रूह कब्ज की तो दूसरा वली उसकी जगह पर आ गया। मैं इस मामले को सुलझाना चाहता था। बहरहाल रात तक मैं रोता रहा, इतना रोया कि मेरी हिचकी बंध गई। अब जब मैं रात को सोया तो ख्वाब में मुझे एक खुदा वंदे करीम ने इरशाद फरमाया,
ए मेरे बंदे, तुझ पर ये बात गिरा गुजरी है, तुझे बुरी लगी है कि मैंने अपने गुनहगार बंदे पर फजलो करम करते हुए उसे अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाई। ये तो मेरा फजल है कि मैं अपने बंदों में से जिसे चाहता हूँ अता फरमाता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा फजल फरमाने वाला हूँ। ख्वाब को देखते ही मैं एकदम चौंक कर उठ गया। अब मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मेरी जिंदगी जो गफलत की शिकार थी, मैंने उठकर वजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की। उसके बाद नमाज फज्र हुई तो मैं मस्जिद में चला गया। मैं अब तक परेशान था और जानना चाहता था आखिर एक गवैये नाचने वाले को उसकी गुनाह की जिंदगी से एक दिन में कैसे निकाला गया। मैं जिस मस्जिद में मौजूद था वो मस्जिद उसी किनारे पर थी जहाँ पर उन बुजुर्ग की कब्र हमने बनवाई थी। उस मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मैं फिर से रो रहा था, रोता जा रहा था। हिचकियां बंध रही थी कि वही बुजुर्ग खूबसूरत से सब्ज रंग के लिबास में मेरे पास आए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ख्वाब के हालत में हूँ और मैं जहरी आंखों से कुछ नहीं देख रहा। वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा, जानना चाहते हो कि आखिर उस गवैये को अल्लाह ताला ने एक रात में ही वलिये वक्त कैसे बना दिया और हमारी जगह पर उसको कैसे ले आया? तो जान लो, वो था तो नाचने गाने वाला, लेकिन वो कुरान करीम की छुप कर तिलावत किया करता। उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि तुम उसकी बात पर यकीन नहीं करते। दरअसल वो रात भर अपने पैसे के मुताबिक नाचता गाता और पैसे कमाता, इसलिए जब फजर की अजान होती तो वो फौरन वजू करता और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर वो कहता, ए अल्लाह, मुझे इस गुनाह की जिंदगी से निकाल ले। मैं खुश नहीं हूँ, ये हराम कमाई है, मुझे इस कमाई से निजात दे दे, मुझे रिज़्क़े हलाल अता कर दे, दिल की दुनिया बदल दे। या अल्लाह, तू एक रात में मेरी जिंदगी बदल सकता है, मुझे यकीन है इस बात का। और वो वही रात थी जिस रात हमें खबर हो गई थी कि हमें अब इस दुनिया से जाना है, और वही हमें अलका हुआ। हमारे पास अल्लाह ताला की सदा आई और इरशाद खुदाबंदी हुआ कि आपकी जगह पर अब कोई और आने वाला है। वो एक गवैया है, नाचने वाला है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो कुरान पाक से मोहब्बत करता है, और आप जिस वक्त तिलावते कुरान पाक करते हैं वो आपको चुपके चुपके सुनता रहता है और वही अल्फाज दोहराता है। पर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पिछले 1 साल से आपके पीछे पीछे है और उस कुरान पाक को जिसको आपने अपने दिल में कैद किया हुआ है, दिल में महफूज किया हुआ है, उसने हिफ्ज कर लिया है। बेशक वो रात भर नाचता है, गाता है और इस गुनाह की जिंदगी से निजात हासिल करना चाहता है, मगर उसने कुरान पाक सीख लिया है। आपको सुनकर इसी वजह से आपके पास वो अमानत है, वो उस गवैये को दे दीजिए क्योंकि अब वो वलिये वक्त बनने वाला है। वक्त आ चुका है, एक रात में उसकी काया पलटने वाली है। ये कहकर वो बुजुर्ग प्यार से मेरी जानिब देख रहे थे। तुमने एक बहुत नेक काम किया है, इस नेकी के एवज अल्लाह ताला ने तुम्हें वो कुछ अदा करना है जिसका तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम दिन की तरफ लौट आओगे। ये कहकर उनकी रूह गायब हो गई और मैं अपने होश की दुनिया में आ गया। उसी वक्त वो गवैया जो अब वलिये वक्त बन चुका था, बहुत ही खूबसूरत से लिबास में, उसी सुफियाना लिबास में मेरे पास आया। उसने कहा, अमानत मुझे लौटाकर तुमने खुद को बदल दिया है। अल्लाह ताला ने तुम पर भी रहम किया है, मुझ पर भी देखो। मैं दुआ किया करता था, अल्लाह ताला ने एक रात में मेरी काया पलटी। कुरान पाक से मोहब्बत करता था मैं, और इसी कुरान पाक की मोहब्बत में अल्लाह ताला ने मुझे वो बना दिया जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। अब तू दुआ करो अल्लाह ताला मुझे इस मनसब से ना हटाए। उसके बाद वो भी चला गया और मैं उसकी सोहबत से फैजियाब होकर अपने काम पर लग गया, और उसके बाद फिर कभी नहीं रोया। हाँ, रोया तो अपने गुनाहों पर रोया, रोया तो शुक्रगुजारी की कैफियत में रोया, और बस शिकवा कभी नहीं किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह लोगों की जिंदगियों को बदलता है। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी की तरफ उंगली ना उठाएं, हमें नहीं पता कब किसके दिल की दुनिया बदल जाए। एक रात में उसकी काया
पलट जाए। जब एक गवैया अल्लाह का वली बन सकता है तो फिर सोचिए कितने गुनहगार इंसान हैं, कितने ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम भी हैं, उनके दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह ताला हमारे ज़बानों को अच्छा करे और हम सब भी अल्लाह ताला के नेक बंदों के फहरिस्त में शामिल हो जाएं।